Hello everyone, my name is Aniket Kadam, and as you all know, we have started Shoravir India Academy in Nanded. And today we have Gaurav Pawar sir with us. He is UPSC CAPF 278 rank holder and he has cleared CDS, FCAT and other defense examinations. As you all have the question about how to prepare CDS during your graduation. So today sir will be sharing his experience because he has also started preparing CDS during his graduation time and he has cleared just after his graduation. So I will hand over to him rest of the lecture. He will guide you about it. Thank you. Sir, welcome. Thank you so much, sir. So, Jai Hind everyone. So, my name is Gaurav, and as you all know, that in this session we'll be talking about a lot many of students. They ask me, they message me on Telegram कि सर हम अभी अंडरग्रेजुएट हमारा चालू हुआ है एंड वी आर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर ग्रेजुएशन बट आवर अल्टीमेट गोल इज टू क्लियर सीडीएस और इज टू जॉइन यूनिफॉर्म सर्विसेज. So what should be the approach, what should be the strategy, right? So it doesn't matter whether you are pursuing a 3-year graduate program or 4-year technical degree, that is engineering. आप किसी भी graduation program में हो, so this session I will be clearing all your doubts and will tell you that how to utilize, or if your ultimate goal is to join or is to clear CDS, so आपकी preparation, आपका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए. सो हियर इट इज द कॉमन क्वेरी दैट आई गॉट. सर, आई एम इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, सो हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सीडीएस. सो दैट इज आवर टुडेस एजेंडा. सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड, राइट, we'll quickly understand what exactly this CDS is. CDS क्या है, CDS का सिलेबस क्या है, कितने एग्जाम्स होते हैं, इसको बहुत ब्रीफली मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा एंड ऑब्वियसली आई विल बी टेलिंग यू दैट हाउ टू स्टार्ट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एग्जामिनेशन. इस एग्जामिनेशन में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, राइट. सो सीडीएस में दोस्तों दो एग्जाम्स हैं हमारे, राइट. फर्स्ट इट इज फॉर IMA, INA एंड AFA. It is the first one, and second if you aspire to go OTA, right? अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बस ये है कि अगर आप IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी का ड्रीम करते हो, दैट यू वांट टू जॉइन दिस थ्री, एनी वन ऑफ दिस थ्री इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए हमें 3 पेपर देने होते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज इंग्लिश, कैरीज 100 मार्क्स. General knowledge carries 100 marks and elementary mathematics that also carries 100 marks. So total 300 marks. यहाँ पे हमें ये देखना है that if we are aspiring to prepare for IMA, INA and AFA, so in this case we are having 3 subjects. ठीक है, हमें 3 subjects, 3 पेपर कवर करने होते हैं, इंग्लिश का, जीके का और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, and all 3 carries 100 marks each. Similarly, we have the second entry that is called as the OTA entry, that stand for Officers Training Academy, right? Here we have only 2 exams. यहाँ पे हमारे पास 2 ही exams होते हैं, English और General Knowledge. Both carries 100 marks. Clear? So basically, if any of the female candidate, if she wants to join Indian Army, so she must appear for OTA. So this is the best opportunity, especially for female candidates. Okay, so this is the basic structure and let us consider कि आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कॉलेज के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंड जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज ऑफ ऑफिसर्स एंट्री. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव पार्ट पे ध्यान नहीं देना है. आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो मुझे अभी से ही इसके ऊपर लग जाना है, सीडीएस के ऊपर अभी से ही लग जाना है. ठीक है, हमें इक्वली ध्यान देना है हमारे एकेडमिक्स पे भी, आपकी प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर, जो भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो. यू माइट बी परस्यूइंग बैचलर इन आर्ट्स, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो सकते हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो सकते हो. अल्टीमेटली जो भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट है
ही मस्ट रिमेंबर कि आपको अपने कॉलेज के साथ साथ सीडीएस दोनों को बैलेंस करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी 80% ऑफ द एनर्जी, आपने मैक्सिमम एनर्जी सिर्फ सीडीएस के ऊपर लगा दी एंड हियर ऑन द एकेडमिक पार्ट यू आर स्ट्रगलिंग टू इवन गेट 60%। आपको ग्रेजुएशन में 60% के लिए भी आप सफर कर रहे हो। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू बैलेंस योर एकेडमिक्स as well as this competitive exam of CDS। आपको ये दोनों बैलेंस करके चलना है। ओके, सो हियर इज द प्लान, राइट, द बेसिक थिंग। ठीक है, व्हाट स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इट इज दैट फोकसिंग ऑन द फाउंडेशनल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? लेट अस टेक दैट सपोज यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, आई वुड 100% रेकमेंड यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, आपको किस पे ध्यान देना है? अपने कॉलेज स्टडीज पे। ठीक है, अपने कॉलेज स्टडीज पे। ओनली इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, पहला साल है ग्रेजुएशन का, सिर्फ कॉलेज स्टडीज के ऊपर ध्यान दो। भूल जाओ सीडीएस के बारे में, भूल जाओ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राइट, अब जो भी आप कॉलेज स्टडीज करते हो, ठीक है, कॉलेज स्टडीज, सबसे पहले आपको पढ़ाई में मन लगाना सीखना है। अगर आप अपनी कॉलेज स्टडीज में पढ़ाई कर सकते हो तो आप कोई भी बुक पढ़ सकते हो, राइट। तो यहां से एक क्या डेवलप करनी है? राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर से ही आपको पढ़ाई की हैबिट डेवलप करनी है। फर्स्ट ईयर में ही मेक श्योर कि आप कॉलेज की पढ़ाई से इतना ज्यादा फैमिलियर हो जाए कि आपको कॉलेज का टेंशन ना हो। ठीक है, आप प्रॉपर रूटीन में आ जाओगे। आप इससे क्या सीखते हो? जब आप अपनी कॉलेज स्टडीज को सीरियसली लेते हो, यू विल लर्न द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन सीखते हो, आपकी स्टडी आवर्स में कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, एंड दिस आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट्स, क्वालिटीज दैट विल टेक यू एंड दैट विल मेक यू क्लियर एनी ऑफ द एग्जाम एंड CDS as well, right? So अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चा कोई भी अगर ये देख रहा है, सो आपको ये अपनाना है। और मोटिव क्या होना चाहिए? कि मुझे पढ़ाई में मन लगाना सीखना है। क्लियर? सो व्हाट अबाउट द स्टूडेंट हु इज इन सेकंड ईयर? अब जो कोई सेकंड ईयर है, ठीक है, कोई BSc, BA, BCom, राइट? कोई भी 3 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम का स्टूडेंट है, वो फिलहाल सेकंड ईयर में, राइट? एंड सेकंड ईयर में हिज एम इज क्लियर, उसका एम क्लियर हो चुका है कि भाई सीडीएस निकालना है। या एनीवन हु इज वाचिंग एंड ही इज इन थर्ड ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग के अपने थर्ड ईयर में है, राइट? तो इन्हें बहुत ज्यादा, एंड इन दोनों स्टूडेंट्स का गोल क्लियर है। ठीक है, he has fully prepared, he has mentally prepared that he want to join uniform services, right? So this is the right time to start your preparation. सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप अगेन 70% ऑफ योर स्टडी स्केड्यूल मस्ट डिवोट। ये कहां पे डिवोट होना चाहिए? आपके कॉलेज या आपके प्रोफेशनल डिग्री या जो भी डिग्री आप परस्यू कर रहे हो। ठीक है, 70% आप इन चीजों की पढ़ाई करोगे, एंड रेस्ट ऑफ द 30% वी विल डिवोट आवर टाइम ऑन सीडीएस। बाकी का जो 30% है वो हम सीडीएस के ऊपर देंगे। अभी अगर आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ 30% देने से क्या हो जाएगा, तो याद रखो दोस्तों, आप अभी अपने सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, हमारे पास बहुत लंबा टाइम है। ठीक है, हमारे पास बहुत लंबा टाइम है, एंड सीडीएस इज नॉट एन एग्जाम। सीडीएस वो वैसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए आपको 2 ईयर की फुल टाइम प्रिपरेशन लगे। ठीक है, सीडीएस वैसा नहीं है, साल में 2 बार होता है, 6-6 महीने के गैप में होता है, जिसका मतलब क्या है? दैट अ पोटेंशियल कैंडिडेट कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम विद इन 6 मंथ, अगर वो डेडिकेटेड फुल टाइम प्रिपेयर करता है तो। ओके, बट वी आर ऑलरेडी इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कॉलेज के साथ इसे मैनेज करना है। सो अगर आप अपना 20-30% भी रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, विद डिसिप्लिन अगर देते हो, सो वी कैन क्लियर दिस एग्जाम, और एटलीस्ट हम इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, एलिजिबल इन द सेंस कि हमने पढ़ लिया है और अब मैं इस एग्जाम में बैठ सकता हूं, राइट? सो इनिशियली व्हेन यू आर इन द सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, व्हाट यू मस्ट फोकस ऑन? यू मस्ट फोकस ऑन योर फाउंडेशन बिल्डिंग। ठीक है, यू मस्ट फोकस ऑन योर फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग से कहने का मतलब मेरा ये है दैट
इंस्टीड ऑफ रॉट लर्निंग, रटने के बजाय जो भी हमें सीडीएस में सब्जेक्ट्स है, ठीक है, सीडीएस में जो भी सब्जेक्ट्स है उनसे हमें फैमिलियरिटी रहनी चाहिए, ठीक है, फैमिलियरिटी होनी चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज एक बीएससी का स्टूडेंट है, ठीक है, बीएससी का स्टूडेंट है, ही इज फैमिलियर विद द साइंस, साइंस से फैमिलियर है। हो सकता है कि पॉलिटी एंड ज्योग्राफी को बहुत लंबा गैप हो चुका है, उसे कुछ नहीं पता पॉलिटी और ज्योग्राफी के बारे में। सो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप क्या करोगे, इन सब्जेक्ट से आप फैमिलियरिटी लाओगे। कैसे फैमिलियरिटी लाओगे आप, ठीक है, वो मैं आने वाली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? सो फ्रॉम दिस स्लाइड व्हाट यू विल लर्न दैट if it is a 3-year graduation program, second year is the right time to start your preparation, and हमें बस वहां पे भी सिर्फ 30% एफर्ट लगाने। 4-year डिग्री प्रोग्राम है, your third year is the right time, ठीक है, third year is the right time because you already learned, आपने सीख चुका है अपने फर्स्ट ईयर में कि कैसे इन दोनों को बैलेंस करना है, राइट? सो लेट अस कम दैट व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। अब एक्चुअल में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट का जो हमें फैमिलियरिटी सीखनी है, ठीक है, सब्जेक्ट की फैमिलियरिटी सीखनी है। अगर मैं बीए का स्टूडेंट हूं, सो बीए में मैं ज्योग्राफी पढ़ सकता हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं मैं कॉलेज में, राइट, बट साइंस मेरे लिए बहुत दूर हो चुका है, ओके, तो मुझे साइंस से थोड़ी फैमिलियरिटी लेनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमें कौन सी बुक्स रेफर करनी है, किस तरह से समझना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। द वेरी फर्स्ट वी हैव द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। नाउ सिंस इंग्लिश इज कॉमन टू बोथ ओटीए स्टूडेंट के लिए भी इंग्लिश सेम है, एंड आईएमए, नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी, राइट, यहां पे इंग्लिश कॉमन है। सो इंग्लिश सीडीएस एग्जाम जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो ऑफिशियली हमें सिलेबस देता है, वो हमें बताता है कि हम ये सारी चीजें पूछने वाली है। सो दिस इज योर ऑफिशियल syllabus of English which is published by UPSC in the notification of CDS। क्या कहता है, the question will be designed to test the candidates understanding of English and workmanlike use of words, basic English जो होती है, right? अब इसे कवर करने के लिए, इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? सो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, अब इंग्लिश आपको कैसे स्टार्ट करना है। हो सकता है कोई बच्चा जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वीक है, सो ही कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको लैंग्वेज इजी जानी चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर पाओ, राइट। सो फॉर दैट यू कैन रीड एडिटोरियल्स, आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके ग्रामर रूल्स, ठीक है, इफ यू आर वेरी वीक इन ग्रामर, you must work on the grammar rules instead of directly learning, ठीक है। डायरेक्ट ये पढ़ने के बजाय कि सीडीएस की इंग्लिश क्या है, उससे बेटर आपको अपना ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना है, नॉर्मली ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। देन जैसे कि टेंस, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना है, राइट। मतलब ये सारे वो जोन्स हैं इंग्लिश के जो आपको इंप्रूव करने हैं। देन if a student is very weak in vocabulary, ठीक है, उसे वर्ड याद नहीं होते, then he must develop an habit, उसे ऐसी हैबिट डेवलप करनी है कि वो डेली बेसिस पे कुछ नए शब्द सीख सके। कहां से सीखेगा, चलो अगर से एडिटोरियल पढ़ता है तो एडिटोरियल से सीख लिया, राइट। एंड वंस योर फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश इज रेडी, आपका बेस रेडी है, आपका इंग्लिश को लेके फियर निकल चुका है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तब आप आओ सीडीएस की इंग्लिश, ठीक है, बिकॉज तब हमारा काम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इफ एनी स्टूडेंट हिज क्वेश्चन इज कि सर इसके लिए कोई बुक रेकमेंड कर दो, राइट। सो द बुक आई वुड रेकमेंड हियर इज ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये अरियन पब्लिकेशन की एक बुक है, राइट। या तो आप ये प्रेफर कर सकते हो, या तो आप रेनन मार्टिन रेफर कर सकते हो, एंड अल्टरनेटिवली इफ आपको बहुत ज्यादा बेसिक बुक चाहिए, राइट, सो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम, आप वो बुक भी रेकमेंड कर सकते हो, राइट। अब देखो कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस बुक की लैंग्वेज आपको समझती है उसके हिसाब से एनी वन ऑफ दिस यू कैन चूज, ठीक है, आप उसे चूज कीजिए एंड अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्गर करते जाइए। टाइम कितना डिवोट करना है, डेली बेसिस पे मैक्सिमम 2 or 3 hours, दैट्स इट, राइट। ऑलवेज रिमेंबर that you have to balance your college along with the CDS exam, right? So
हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है 100 मार्क का होता है। एवरी स्टूडेंट डजंट मैटर, ही मस्ट एम फॉर 80 प्लस। 80 प्लस का उसका गोल होना चाहिए। जब आप गोल अपना हाई रखोगे तब जाके हम कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर में लैंड करते हैं, राइट। 60 प्लस इज कंसिडर्ड एज ए सेफ स्कोर एंड अ गुड स्कोर, बट फॉर दैट एम हाइयर। जितना हाई आपका एम रहेगा उतना सेफ जगह पे आप लैंड करोगे। सो दैट इज अबाउट इंग्लिश। टॉकिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ आवर पेपर, दैट इज जनरल नॉलेज। सो जनरल नॉलेज का ऑफिशियल सिलेबस बाय यूपीएससी क्या हमें बताता है? सो दिस इज हाउ ही सेज, राइट। सो जिसे आप रीड कर सकते हो, इसे मैं सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। सो बेसिकली सीडीएस में जो जनरल नॉलेज होता है, अगेन टोटल 100 मार्क होते हैं, राइट। यू कैन एम फॉर 60-70 प्लस। अगर एम करोगे तो आप एक सेफ स्कोर, दिस इज द सेफ स्कोर, एम हायर एंड लैंड इन अ सेफर जोन। 40-50 आप ला सकते हो, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ओके। एंड जो भी मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं, ये आपको एक्चुअल एग्जाम में मेरिट इन कराता है, ठीक है। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ मेरिट आउट, सो एम हायर। जनरल नॉलेज में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं? इंडियन पॉलिटी में बेसिकली हम पढ़ते हैं हमारे संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देन वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, राइट। दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स, दीज आर द बेसिक कोर सब्जेक्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। जो हमारी जनरल स्टडीज होती है उसके ये बेसिक कोर सब्जेक्ट्स है, क्लियर फॉर द सीडीएस। Now one by one I will be telling you that how to cover, what book you should follow, right? And talking about the first one, that is geography. Geography हमें किस तरह से अप्रोच करनी है, किस तरह से कवर करनी है, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, लेट अस टेक कि चलो यार कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोई बीएससी का स्टूडेंट है, ओके, एंड अपने सेकेंड ईयर में है। कैसे करेगा? सिंपली आप उठाओ 6वीं से 10वीं की एनसीईआरटी। सबसे पहले तो आप 6th की उठाओगे, देन 7th पढ़ो, 8th पढ़ो, 9th पढ़ो, 10th पढ़ो, दैट्स ऑल। धीरे धीरे पढ़ो, समझेगा। अगर आपको लग रहा है सर कैसे समझेगा, तो अपनी पोटेंशियल याद रखो कि ये जो बुक लिखी हुई है, ठीक है, आप वो सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट आप 19-20 ईयर्स के हो, ऑन एन एवरेज 20 ईयर्स के आप हो चुके हो। आप सोचो कि यार आप 20 साल की उम्र में 6वीं क्लास के लिए लिखी गई बुक नहीं समझ सकते हो क्या? है ना? तो इट इज वेरी बेसिक बुक एंड ये हमें प्रिपेयर कराती है, ये हमारा बेस डेवलप करती है, राइट। सो 6 to 10 एनसीईआरटी। एंड अगर से आपको लगता है कि चलो यार ये तो मेरा हो गया है, देन आप ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, फिर हम 11th पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। 11th एंड 12th पे आप वो बुक पढ़ना चालू करो, ठीक है। धीरे धीरे, बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, एक दिन में नहीं करना है। एक दिन में आपको बस 2 से 3 घंटे निकालने हैं, राइट। धीरे धीरे प्लान करो, जो सब्जेक्ट आपको बेटर लगता है वहां से स्टार्ट करो। लेट अस टेक कि यार मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मैं भी एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, एंड मैं अपने सेकंड ईयर से अगर सीडीएस प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूं, तो मैं क्या सब्जेक्ट उठाऊंगा? मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगा जो मेरे लिए फैमिलियर हो, जिसे पढ़ के मैं बोर ना हो जाऊं, जिसे पढ़ के मैं डिमोटिवेट ना हो जाऊं, राइट। तो मैंने ज्योग्राफी उठाया, मेरे हिसाब से आपके लिए हो सकता है किसी के लिए हिस्ट्री हो, अगर आप बीए के स्टूडेंट हो, किसी के लिए पॉलिटी हो सकता है, कोई अगर बीएससी स्टूडेंट है वो साइंस से स्टार्ट कर सकता है, राइट। सो 6 to 10 आप स्टार्ट करो, देन उसके बाद आप 11th-12th पढ़ सकते हो। एक एटलास अपने पास रखो, ठीक है। कोई भी लोकेशन अगर आपको नहीं समझती, उस एटलास में देखो। आज तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, गूगल मैप्स है, वहां पे देखो कि वो लोकेशन एग्जैक्टली कहां है। किसी रीजन की बात हो रही है तो किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, कोई माउंटेन की बात हो रही है तो भाई किस कंट्री में वो माउंटेन है, ओके। एंड अगर आप ये सेल्फ रीड नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर से आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रेफर टू यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे जाओ एंड यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे डायरेक्टली ये पढ़ना मत चालू कर दो कि यार मुझे सीडीएस की ज्योग्राफी करा दो, ये नहीं आपको करना है। इंस्टीड, क्योंकि आप सेकंड थर्ड ईयर में हो ना, तो डायरेक्ट ये मत जाओ कि यार मुझे सीडीएस की ज्योग्राफी करा दो, सीडीएस की पॉलिटी करा दो, नो, ठीक है। ऐसे कोई लेक्चर देखो जहां पे 6th ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड, 6th ज्योग्राफी एक्सप्लेन्ड। इस तरह से आपको अपने हर एक सब्जेक्ट्स कवर करने, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से आप कवर करोगे। जैसे ही हो जाता है आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, देन आप 11th एंड 12th पे मूव कर सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट ज्योग्राफी। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री की अगर बात करें, सेम चीज, ठीक है, सेम चीज।
यहां मैं लेके चलता हूं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट का इतिहास से वैसे देखा जाए तो दूर दूर तक रिलेशन नहीं होता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते बिकॉज अल्टीमेटली सीडीएस क्लियर करना है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से बेसिक स्टार्ट करेंगे। चलो 6 की हिस्ट्री रीड करेंगे, 7th 8th रीड करेंगे, देन वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आपका हिस्ट्री को लेके ये चीजें फियर क्लियर करती है, फियर निकाल देगा, राइट? क्या सिर्फ फियर निकालेगा क्या? नहीं, यहां से हमारा एग्जाम के लिए ये बुक रेलेवेंट भी है, ठीक है? ये बुक एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट है। जैसे आपका ये होता है, आप आ जाओ 12th पे, ठीक है? 12th क्लास में हमारे पास 3 बुक्स होती है। 12th एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री, वी हैव 3 बुक्स, थीम्स 1, थीम्स 2, थीम्स 3। आप ये धीरे धीरे पढ़ना चालू करो, ठीक है? ओके, एंड अगेन व्हाट इफ कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या क्या हो रहा है हिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा है। सेम चीज YouTube ओपन करो, ठीक है? YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। कोई ऐसा टीचर सेलेक्ट करो जिसने 6th क्लास की बुक सिंप्लीफाई की है, 7th सिंप्लीफाई की है, 8th सिंप्लीफाई की है, 12th एनसीईआरटी सिंप्लीफाई की है, ठीक है? एंड अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि सर आप ही वो YouTube टीचर का नाम बता दो, ठीक है? सो दैट विल चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है? जो टीचर से मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, हो सकता है आपको किसी और से अच्छा लग रहा हो, बट आपको पढ़ना ये है, ऐसा टीचर सेलेक्ट करो कि जब वही 6th की हिस्ट्री हमारे लिए सिंप्लीफाई कर रहा है, 7th 8th हिस्ट्री सिंप्लीफाई कर रहा है, ठीक है? एंड यू कैन आल्सो रेफर दिस बुक, ठीक है? अगर आपका हिस्ट्री फेवरेट है, लेट अस टेक दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और उसमें आपका मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, राइट? सो आप स्पेक्ट्रम रेफर कर सकते हो फॉर मॉडर्न इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वी रेकमेंड फॉर सीडीएस हिस्ट्री एज वेल, राइट? तो ये आप रीड कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, पॉलिटी पे अगर हम आते हैं, सो जैसे मैंने बताया दैट इन पॉलिटी वी स्टडी अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। एंड द बेस्ट बुक फॉर दिस इज एम लक्ष्मीकांत, ठीक है? एम लक्ष्मीकांत, आप ये बुक परचेज भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो, क्लियर? नाउ अगेन वन थिंग अबाउट दिस बुक, इट हैज वेरी इजी लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में ये इजी होती है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा सर ये तो कितनी मोटी आपने बुक बता दी, बट ट्रस्ट मी गाइस, एट द एंड यू विल से सर दिस इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये हम सभी का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। अगेन सेम चीज नहीं समझ में आ रहा है, YouTube पे आप सर्च करो दैट एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट आती है, बहुत रेप्यूटेड एंड नॉलेजेबल टीचर्स आपको मिलेंगे, एंड वो चीज आपका सिंप्लीफाई करेंगे। यू मस्ट टारगेट, बिकॉज हम डेली 2 से 3 आवर्स दे रहे हैं हमारे सीडीएस प्रिपरेशन के लिए। सो आपका टारगेट सिंपल ये होना चाहिए दैट 1 चैप्टर फ्रॉम दिस बुक पर डे, एक दिन में मेरा होना चाहिए, ठीक है? या तो ठीक है 1 लेक्चर, जो भी आपकी लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है YouTube पे, 1 लेक्चर पर डे, इस हिसाब से उसे एंजॉय करते हुए पढ़ो। अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं समझ रहा है, राइट? वो क्या कर सकता है, देयर इज ब्यूटीफुल सीरीज कॉल्ड संविधान, ठीक है? YouTube पे अवेलेबल है, आप सर्च करोगे संविधान, ये आपको बताएगा प्रॉपरली, ठीक है? प्रॉपरली बताएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअल में बना कैसे, क्योंकि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझोगे इस बुक को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सो दिस इज इंटायरली ऑप्शनल, ये पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो ये देख सकते हैं, ठीक है? बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। मेक श्योर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम योर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, योर प्रिपरेशन ऑफ सीडीएस शुड नॉट प्रेशराइज यू, आपको स्ट्रेन नहीं करना चाहिए, आपको सीडीएस की प्रिपरेशन में एंशियस नहीं करना है, इसको बहुत ही आपको हैप्पी वे में पढ़ना है हर एक चीज, ठीक है? So that is the strategy for polity. Then it is economics. Again मैं भी वही स्टूडेंट था कि इकोनॉमिक्स का मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अगेन सेम 11th क्लास की एनसीईआरटी आप यू रेफर कर सकते हो, 12th क्लास की रेफर कर सकते हो, कुछ इस तरह से दिखते हैं। एंड दिस बुक्स आर वेरी थिन, बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, ठीक है? फॉन्ट बड़े एंड बुक छोटी, राइट? सो इनका भी आप सेम स्ट्रेटेजी अपनाओ, 1 चैप्टर पर डे, 1 चैप्टर पर डे। नहीं समझता है, सेम चीज YouTube पे चैप्टर सिंप्लीफाई करो, कॉन्सेप्ट समझो कि हमारा बजट क्या होता है, ठीक है? देन जीडीपी क्या होती है, राइट? ये सारी चीज हमें यहाँ पे समझना होता है। सो एनी YouTube लेक्चर दैट सिंप्लीफाइज
this task, right? So that is for economics. And lastly, साइंस का CDS में सबसे ज्यादा वेटेज होता है. इट कैरीज मैक्सिमम मार्क. क्या रीड करोगे? सेम चीज 6, 7, 8, 9 एंड 10 NCERT. ओके, ये चीज आपको रीड करनी है. वो बुक कुछ इस तरह से दिखती है. इसकी PDF ऑनलाइन अवेलेबल है एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड ऑल दी स्टडी मटेरियल. जो भी स्टडी मटेरियल मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है, ये सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है. इन सभी का PDF हमने वहां पे अपलोड किया है. सो यू कैन join our telegram channel and there download this PDF. okay, so that should be your approach for science. आप साइंस को कुछ इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो. देखो, कहीं पे भी आपने ऐसा देखा कि कोई भी बुक ऐसी थी जो आपको फर्स्ट ग्रेजुएशन लेवल की थी? नो. ठीक है, सारी जो भी बुक है वो मैक्सिमम 12th तक का हमसे पूछा जाता है एंड दैट इज व्हाई ऑल दिस कम्स अंडर द जनरल नॉलेज. ठीक है, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक एकेडमिक नॉलेज, ये जनरल नॉलेज होता है, राइट? सो 6, 7, 8, 9 एंड 10th, right? So that is what you will refer for science. The last section, that is mathematics. And mathematics के लिए आपका जो most important guide है, ठीक है, आपका जो गाइड होना चाहिए वो क्या होगा? ऑफिशियल सिलेबस. These are the cutouts from official syllabus. आपको ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है एंड प्रॉपरली दिया गया है कि मैथ्स में आपको कौन से टॉपिक, एरिथमेटिक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या है, रैशनल क्या है, रियल नंबर क्या है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है. ठीक है, लाइकवाइज देन वी हैव एलिमेंट्री नंबर्स, थ्योरी ऑफ डिवीजन, एल्गोरिथम, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2, 3, 4, 5, 9, 11, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, एलसीएम एचसीएफ क्या है, लॉगरिथम टू बेस 10 क्या होता है, लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है, राइट? वी हैव अलजेब्रा सेक्शन. देन इन मैथमेटिक्स वी हैव ट्रिग्नोमेट्री, वी हैव ज्योमेट्री, वी हैव मेंसुरेशन एंड वी हैव स्टैटिस्टिक्स. क्लियर? तो ये हमारे मैथ्स के सिलेबस है. मैथ्स की पढ़ाई आप स्ट्रिक्टली सिलेबस के थ्रू करोगे. सिलेबस के बाहर आपको वो टॉपिक कवर नहीं करने हैं बिकॉज दीज आर इनफ. ये काफी होता है. आप डायरेक्शन लेस पढ़ने से बजाय इस डायरेक्शन को फॉलो करो जो आपका सिलेबस कहता है. क्लियर? एंड अगेन टॉकिंग अबाउट द स्कोर, मैथ्स कैरीज 100 मार्क्स. 100 में से यू मस्ट हैव अ सेफ स्कोर ऑफ 50. सेफ स्कोर आपको ये टारगेट करना है. इनिशियली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैथ्स में मुझे 70 प्लस लेके आने हैं. दैट शुड बी योर एम. क्लियर? मैथ्स में ये हमारा एम होना चाहिए. सो अल्टीमेटली वी विल लैंड समवेयर हियर, राइट? सो दिस आर द सिलेबस. सिलेबस को देखो. सिलेबस में प्रॉपर्ली आप टॉपिक्स देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड उन टॉपिक्स की डिटेल स्टडी करो. नाउ चलो, मैथ्स में बच्चों की सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं. लेट अस टेक कि भाई हम अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करते हैं. नहीं समझ में आ रहा है. जब हमने कोई बुक से पढ़ा, बुक आप RS अग्रवाल रेफर कर सकते हो, देन फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स आती है वो आप रेफर कर सकते हो. नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है? YouTube पे मैथ्स के इतने बड़े बड़े रेप्यूटेड टीचर्स हैं. ठीक है, सिंपली उन टीचर्स का नाम डालो और ये टॉपिक का नाम डालो, राइट? 2 घंटे का 3 घंटे का वीडियो आता है, आराम से बैठ के देखो, घाई नहीं करनी है. ठीक है, आपने अर्ली स्टार्ट किया क्यों है? आपने अर्ली स्टार्ट इसलिए किया है ताकि आप जिस दिन आप एलिजिबल होते हो, जिस दिन आप असली में एग्जाम दोगे, आप उस समय पैनिक ना करो. आपकी प्रिपरेशन, ठीक है, हाफ ना रहे. ठीक है, हाफ हार्टेडली आप एग्जाम में ना बैठो. इसीलिए तो हमने इतना अर्ली स्टार्ट किया है. आपने सेकंड ईयर से प्लान करके रखा है कि मुझे CDS देना है. ठीक है, मुझे फौज ही ज्वाइन करनी है, राइट? सो आराम से टाइम दो. ठीक है, यू आर मच अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर इफ यू आर targeting, if you are started learning CDS right from your second year, right? So these are the topics that we have covered. So overall we have seen English officially as per official syllabus, हमने GK देखा, हमने मैथमेटिक्स देखा. तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए, राइट? सो टू कंक्लूड, इफ आई वांट टू कंक्लूड द एंटायर सेशन, द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, आप किस पे ध्यान दोगे? यू मस्ट फोकस ऑन योर कॉलेज. आपकी जो कॉलेज एकेडमिक्स पढ़ाई है, आप उसके ऊपर ध्यान दो. आप किसी भी चीज को पढ़ना सीखो, कोई भी चीज को आप पढ़ना सीखो. अगर आप अपने कॉलेज में फोकस कर सकते हो, देन आप कोई भी पढ़ाई कर सकते हो, राइट? सो हियर यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, यहाँ पे खुद में डिसिप्लिन प्रैक्टिस इनकलकेट कराओ. कंसिस्टेंटली अपने स्टडी आवर्स मेंटेन करो. ठीक है, कितने स्टडी आवर्स मेंटेन करो, राइट? यहाँ पे
आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, आपको सीडीएस की पढ़ाई में बिल्कुल नहीं उलझना है फर्स्ट ईयर में। या तो कॉलेज एंजॉय करो, अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे हो तो कॉलेज की एक्टिविटीज एंजॉय करो। जब आप प्री फाइनल में आते हो, 3 ईयर प्रोग्राम में सेकंड ईयर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, 4 ईयर प्रोग्राम में थर्ड ईयर वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। सो प्री फाइनल ईयर, यहां पे यू कैन स्टार्ट स्लोली अंडरस्टैंडिंग दी सब्जेक्ट्स की फैमिलियरिटी लाओ। ज्योग्राफी है, जानो क्या ज्योग्राफी है, ठीक है, जो बेसिक बताया वो देखो। डायरेक्टली ये मत पढ़ो दैट गिव मी अ प्लेलिस्ट ऑफ सीडीएस ज्योग्राफी, नो। जो बेसिक बुक्स है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग करो। ओके, सो here you can start slow, you can get familiarity with all the subjects, identify your weak areas and strong areas, right? Suppose आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आपको लगता है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जो सब्जेक्ट आपको मोटिवेट करता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। एंड डेली 2 से 3 आवर्स, ठीक है, 2 से 3 आवर मैक्सिमम। इवन इफ यू आर गिविंग 2 आवर्स, आई एम हैप्पी, राइट? एंड आई नो कि जो भी बच्चा अपने प्री फाइनल ईयर से 2 आवर सीडीएस को देता है, वो 100% उस एग्जाम को क्लियर कर ही देगा, राइट? सो डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, सब्जेक्ट से फैमिलियरिटी लाओ। एंड इन फाइनल ईयर देन एट दिस स्टेज आपको सब्जेक्ट्स की फैमिलियरिटी आ गई, फाइनल ईयर में उसी चीज को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दो, राइट? सो दैट इज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी फॉर द स्टूडेंट who are in their graduation, जो UG students हैं and they aspire to join CDS, join uniform forces through CDS exam. So that should be the approach from my end. Talking about myself, even I have decided to appear for CDS when I was in my second year, right? So second year of my engineering, मैंने सोच लिया था कि मुझे CDS एग्जाम देना है। Then थर्ड ईयर से मैंने धीरे धीरे पढ़ना चालू किया, राइट? अब दोस्तों देखो, मैं आपको इस चीज के ऊपर क्यों एम्फसाइज कर रहा हूं कि आपको कॉलेज स्टडीज निगलेक्ट नहीं करनी है, ठीक है? मैं इतना ज्यादा उलझ चुका था कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मेरे थोड़े कॉलेज में परसेंट कम हो चुका था। तब मुझे ऐसा लगा कि यार अगर 60% भी नहीं आए तो हमारी डिग्री किस काम की, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे जवाब देना पड़ेगा। सीडीएस अगर मैं क्लियर भी कर जाता हूं, मुझे एसएसबी में इंटरव्यूअर को जवाब देना पड़ेगा कि भाई परसेंट क्यों कम हो गए, कॉलेज पे क्यों ध्यान नहीं दिया, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। That is why I am emphasizing on the thing that you must balance your college academics study and this competitive exam, right? So that is all from my end. If you have any type of doubt, you can drop your questions in the comment section. And इस वीडियो में जितने भी पीडीएफ्स की मैंने बात की है, जितनी भी बुक्स की मैंने बात की है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, NCERT 6 to 10th NCERTs of geography, history, economics, all you can get it from our Telegram channel, and Telegram channel का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So that is all in this video. Have a good day and जय हिंद।